first. Yes. Okay, so this is the image. Check करो students. क्या क्या दिखाई दे रहा है? कौन मुझे explain करेगा ये image? Who can explain me this image? This is very simple. Last time हमने यही किया. जय दवे try कर. Can I try? हाँ, मैं wait. I'll give you chance. Yes, Jay. Go ahead. Sir, so we have, for example, the foreign DNA in the diagram. Let's consider it as insulin. And on the other hand, we have plasmid, which is the extra Chromosomal DNA. Extra chromosome. So now, with the help of the molecular scissor, we take a part of the insulin and we insert it in the plasmid. And now the new DNA which is formed is known as the recombinant DNA or the rDNA. Now once this starts dividing, the insulin formation increase. Okay. It's put ठीक है, into ठीक है. bacteria first. No problem. ठीक है. महक start कर. Same thing. Yes, sir. Can you zoom out the diagram? Yeah. So now suppose if the foreign DNA is DNA that we want to replicate. At present hand, we have insulin that we want to replicate. And this is the vector plasmid DNA, which is an extra chromosomal DNA. So even if we take it from bacteria, it won't affect the bacteria because it does not depend on it. So now we use a molecular enzyme that cuts a specific part of the plasmid. This is where we attach the foreign DNA. Now, this plasmid is known as recombinant DNA or rDNA because of the newly put foreign DNA. This entire recombinant plasmid is again put back into the bacterial body, and the bacterial body is then put into culture so that it can grow, and the bacteria multiplies. After the bacteria multiplies, we have too many copies of the recombinant DNA, and we made copies of the actual foreign DNA particle we wanted. So right now it's insulin, so we have too many copies of insulin, so we can take it out and then That's it. Okay. We can use them. So our main objective was, as she said, I wanted multiple copies of my gene of interest. So जिसको वो DNA बुला रही थी, उसको DNA भी अपन बोल सकते हैं, part of DNA, sequence of DNA, or just a gene. ठीक है? That would be the more appropriate term. So gene of interest is this, students. Gene of interest. जय ने उसको incorrectly insulin बोला. So that is not correct. This is your gene of interest. ठीक है, बट एक और चीज दोनों ने मिस किया, वो एक चीज मुझे सुनना है. लेट अस सी कौन वो बता पाता है. दिस वाज जीन ऑफ इंटरेस्ट जो महक ने बताया. हमारा मेन मोटिव, लाइक शी सेड, इज मल्टीप्लाइंग दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट with the help of division of plasmid, which doesn't get impacted by the introduction of this part into it. है ना? तो जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, हमने पढ़ा था प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा, and therefore gene of interest will also multiply. Should I write it over here? Gene of interest, जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ये हमारे काम का जीन है. एंड देन वो आपको प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करना है स्टूडेंट्स कि जीन का मल्टीपल कॉपीज बन गया, दैट्स इट. देन नाउ यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि जीन को निकाला हमने, फिर हम उसको इंसुलिन बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, देयरफॉर इंसुलिन बनेगा. वो कुछ भी आपको नहीं बोलना है. दैट इज वेयर यू विल एंड. Okay, so multiple copies of our gene of interest is produced, and this is biotechnology का rDNA technology. rDNA technology. Okay. चलो नेक्स्ट, हु विल से द सेम थिंग रिपीट करना है. आदित्य गायकवाड़, सॉरी अदिति गायकवाड़. हाँ, What did we miss? Yes, sir. आई लेट यू नो. मैं रुक जा चेक करते हैं इफ अदिति पिक्स दैट अप. अदिति गायकवाड़, रिपीट. Yes, sir. So like whenever we need the copies of like gene of interest, we remove the plasmid of cell. What is that? Like microbe ka cell, microorganism ka cell. We remove the plastid and then we cut it by the
plasmid, sorry, yeah, plasmid. Then we cut it by the molecular scissor, and then we insert that the gene of interest. So the DNA which is formed is the recombinant DNA, and then it is put again into the microbe so that it starts copying, like many copies are formed. बहुत सारे स्टेप स्किप कर दिए अदिति, बहुत ऊपर ऊपर से यू आर रनिंग विद द कंसेप्ट. टिल नाउ महक वाज बेस्ट. आगे चलते हैं. हु एल्स? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स इफ यू आर रेडी टू एक्सप्लेन दिस थिंग. आपके सामने चार्ट है ऑलरेडी. रेज योर हैंड. अवनीश पांडे. यस अवनीश, बता. चल स्टार्ट अवनीश, स्टार्ट क्विकली. हाँ सर. सर इसके अंदर फॉरेन डीएनए का जो जीन रहता है, मतलब फॉरेन डीएनए का जीन कई सारी चीजें बनाता है, तो उसके अंदर जो इंसुलिन वाला जीन रहेगा उसको मॉलिक्यूलर सीजर से कट करेंगे, और बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक जो मटेरियल रहता है प्लाज्मिड, उसके अंदर से वही उतना पार्ट कट करेंगे जितना, मतलब जहाँ पे अपने को जीन इंसर्ट करना है, और फिर उस पार्ट को कट करके वहां पे अपना इंसुलिन बनाने वाले जीन को इंसर्ट कर देंगे, और फिर उसको उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में दोबारा इंसर्ट कर देंगे कि वो डिवाइड करे और हमारे जो जीन है उसको मल्टीप्लाई करे, और फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, और फिर वो मतलब अपना जो जीन रहेगा उसका कॉपीज बनना चालू हो जाएगा. ओके, वेरी गुड. अवनीश मुझे एक बात बता, मुझे ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, इंसुलिन वाला जो जीन है, उसको मैं प्लाज्मिड में कहाँ डालूं, ये मेरा चॉइस है क्या? कैन आई सिलेक्ट द एरिया वेयर आई कैन इंसर्ट दिस जीन मेरी मर्जी से? कैन आई डू दैट? No, sir. क्या बोले I सर? guess. We put it in the I'm specific asking, हाँ, आई एम आस्किंग इफ आई हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस, कि ये जीन कहाँ पे किस सेक्शन में जाए, उस पे मेरा कोई कंट्रोल होगा क्या? we can insert the gene only from the place where we have cut the plasmid. No other section we can apply. Correct. So do I decide where do I cut the plasmid, or that is decided by the enzyme? नो सर, enzyme Decided sir, by the enzyme decide enzyme. करता है सर. हाँ, so this is exactly what all of you have missed up till now. ठीक है, I'll go to Vrishti. Let us see Sir, if I she said covers it's a this. specific part that it cuts. Yes, but still मैं बताता हूँ क्या मिस किया. तूने करेक्ट बोला महक, खाली एक चीज मिस किया, वो मैं बोलता हूँ क्या है. चल वृष्टि. Okay. Yes, sir. So I'll start. So first we will take any bacterial cell and we have to work on its plasmid. A plasmid is generally an extra chromosomal DNA, and we have a foreign DNA, which is a desired DNA, which we want to insert in the plasmid. So we take some restriction enzymes and cut the plasmid, and we insert this desired DNA inside the plasmid with the help of ligase enzymes. So both of the sticky ends of the DNA join to form a recombinant DNA molecule. This recombinant DNA molecule is inserted back again in the bacterial cell, which will thus divide frequently, and a lot of copies will be produced. And I would also like to throw light upon the population stages. So when the DNA just starts to multiply, it's called the lag phase. When it multiplies exponentially, it's called the log phase. And when it reaches a point where the culture medium doesn't support the population of bacteria, Get saturated. And Get yeah, it's saturated. saturated, and then it starts to die. So we need to extract it before the stationary phase to prevent the death, and just to extract insulin. That was just one extra point I thought to add. करेक्ट. नाउ वी डोंट नीड दैट पॉइंट एक्चुअली. सो मतलब आराम से आप उस पॉइंट को निकाल सकते हो जो लास्ट में वृष्टि ने बोला. इट वाज solely for her own purpose. She wanted to include that also. Let us remove that point and come to the point which everyone has missed. एक लाइन बोलना जरूरी है स्टूडेंट्स. restriction enzyme we are using, Bacteria correct, die. but that enzyme, नहीं, restriction enzyme which we are using is the same enzyme which we will have to use on both the materials, on the plasmid also, and the same enzyme will have to be used on the ligase. हाँ, नहीं, ligase नहीं, हाँ, फॉरेन डीएनए, करेक्ट. सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो सेम दोनों पे वही काम करेगा. देयरफॉर इट इज गोइंग टू कट द सेम सीक्वेंसेस. अंडरस्टूड? अदरवाइज सपोज मैंने फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए कोई और एंजाइम यूज किया,
if I'm using any other enzyme to cut the plasmid, don't you think वो size matter vary कर जाएगा? So length एक suppose यहाँ पे इतना बड़ा कट हुआ, कहीं पे इतना छोटा कट हुआ, तो हम कैसे properly insert कर पाएंगे? तो वही That is बोल very सकते हैं ना सर, important. उसी Sir, सेम मॉलिक्यूलर सीजर से कट करेंगे हम लोग। Same sir, molecular molecular scissor, scissor. ये word important हाँ. था, ये word important है। Same molecular scissor is what I didn't hear. I सर didn't आपने hear. ये वर्ड यूज किया था सर। हाँ, मैंने यूज किया था, बट मुझे आज वो सुनने नहीं मिला। So same molecular scissor पहली बात। Now I'll come to molecular scissor. And Vrishti while she was speaking, उसने एक और वर्ड यूज किया, sticky end. So let us see what is that sticky end. And DNA ligase, you have to understand students, जब DNA ligase मतलब क्या, आपके बुक में लिखना है तो लिख सकते हो। DNA ligase is like, it is like फेविकॉल है हमारे लिए, ठीक है। इट इज लाइक फेविकॉल और फेविस्टिक, जो भी आप बोल लो, इट विल बी स्टिकिंग द एंड्स, बट स्टिकी एंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इट। स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस करेगा वो अपन आज देखेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल एक पूरा ओवरव्यू था, है ना। आई सपोज महक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसने सारा स्टेप एक एक करके एक्सप्लेन किया एकदम प्रॉपर ऑर्डर में। ओके अदिति गायकवाड़, तुझे वापस से ये वीडियो जब अपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना रिकॉर्डिंग लेक्चर डाल देंगे, मेक श्योर कि वो सेक्शन तो वापस से देखे, ठीक है। वो सेक्शन तो वापस से चेक कर लेना। ओके आई विल कम टू दिस Yes, पार्ट sir. नाउ स्टूडेंट्स। ओके let me come to the next part now. So next part I'll upload. Now you have to go and check which image। एक सेकेंड, अब आपको स्टूडेंट्स चेक करना है इमेज नंबर, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट इमेज जो मैंने आपको भेजा है, फर्स्ट इमेज, ठीक है। ये वाला इमेज चेक करो। चलो सो अब इसमें क्या देखेंगे अपन, इसमें देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बट ये इमेज पे जाने के पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। लेट अस हैव अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन दीज एंजाइम्स। Sir, which image? एक मिनट आई विल अपलोड इट ऑन द स्क्रीन, डोंट वरी, वेट फर्स्ट लिसन टू मी नाइसली। सो फर्स्ट ऑफ all of you must be knowing this term. If I say nuclease, do you understand what do I mean by nuclease, students? Nuclease से मेरा मतलब क्या है? Nuclease से मेरा मतलब क्या है? What do I mean by nuclease? An enzyme that breaks down. Nucleus. An enzyme that breaks down nucleotides. Shabash. First of all, it is an enzyme. Why? Because it has ASE at the end. है ना? So it is enzyme, confirm. It is an enzyme. If I say lipase, digest करता है lipids को. If I say amylase, digest करता है carbohydrates को. If I say protease, digest करता है proteins को. Now tell me, nuclease किसको digest करेगा या किसको break? Shabash, very good, very good. It will break nucleic acid, correct? To be more specific, it will break nucleotides. It will break nucleotides, है ना? So यहाँ से आपको समझ में आ गया कि it is an enzyme, ठीक है। For the newcomers, ASE जब अपन देखेंगे लास्ट में तो इसको enzyme समझ लेंगे हम। And then by this term, this entire term, ये पूरे टर्म को देख के मुझे क्या समझ में आया, ये रेड आरो में और अंदर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ASE का मतलब एंजाइम जा रहा है। एंड देन पूरे कंटेंट का मतलब क्या है? पूरे कंटेंट का मतलब है इट इज गोइंग टू मे बी ब्रेक या डाइजेस्ट, जो भी आप बोलो, इट इज गोइंग टू ब्रेक न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, एंड न्यूक्लिक एसिड में मेरा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है आज, विच इज माई टारगेट टुडे? डीएनए है ना। न्यूक्लिक एसिड्स तो दो है ना अपने पास, एक डीएनए एक आरएनए, राइट है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके शाबाश, सिंपल बात है ये, है ना। न्यूक्लियस मुझे समझ में आ गया। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू कैन, और एल्स आई एम सेविंग इट, डोंट वरी, मैं इमेज सेव कर रहा हूँ, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेरोनिका प्लीज म्यूट योर ऑडियो। वेरोनिका, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू ब्रेक माय न्यूक्लिक एसिड। ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड को भी ब्रेक करेगा, है ना। ऑल ऑफ यू मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन, मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन, ठीक है। कैमरा जबरदस्ती ऑफ करके मत बैठना। एवरी लेक्चर आई विल गिव यू फर्स्ट वार्निंग, ठीक है, दैट इज माय प्रॉमिस। मैं फर्स्ट वार्निंग दे दूंगा, उसके बाद मैं लेक्चर से निकाल दूंगा और पूरे लेक्चर में आने नहीं दूंगा, ठीक है। सुनाई दे रहा है सूरज, वेरोनिका, चेतना?
आकांक्षा सिंह, शाहीन, नो प्रॉब्लम। ओके वेरोनिका, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सो नाउ न्यूक्लियस के टाइप्स हैं क्या, आप पूछोगे सर न्यूक्लियस के टाइप्स हैं क्या? यस, वी हैव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस स्टूडेंट्स, वी हैव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द टाइप्स बाय देयर नेम, ठीक है। एक ऐसा टाइप होगा जो बाहर से एंड से टर्मिनल से, ठीक है। सपोज इफ दिस इज डीएनए, इफ दिस इज डीएनए, सो एक टाइप ऑफ न्यूक्लियस ऐसा है जो एंड से डाइजेस्ट करता हुआ आएगा, तोड़ता हुआ आएगा डीएनए को, किसी भी टर्मिनल से तोड़ता हुआ आएगा डीएनए को, ओके। एंड देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू ब्रेक डीएनए फ्रॉम नॉन टर्मिनल एंड्स, यहां से ब्रेक कर देगा, और एल्स यहां से ब्रेक कर देगा, यहां से, बट नॉट टर्मिनल। Okay students, so now I'll give you the terms, you tell me which one is having which kind of mode of action. Okay, so nucleus, maybe I have two types for you. One type is known as endonuclease, बहुत simple meaning है इसका, ठीक है, endonuclease, and the other type is exonuclease, endonuclease, exonuclease. Tell me which of these two types, these two types will digest the DNA or break the DNA from non-terminal region. Endonucleus. Endo, it was very simple to judge, है ना, बहुत simple था इसको identify करना. Endonuclease is something, endonuclease or endonucleases are the restriction enzymes. These are the restriction enzymes. यही हैं वो restriction enzymes which are going to break your DNA, which are going to cut your DNA from non-terminal positions, and therefore can I call them as molecular scissors? Can I call them as molecular scissors? Because molecular level पे आप काम कर रहे हो, आप DNA के level पे काम कर रहे हो, therefore they are also known as molecular scissors. Restriction enzyme को ही अपन molecular scissor बोलेंगे, जिनमें ये एक टाइप है endonuclease. हमको इस चैप्टर में इसी टाइप का काम है. We are not going to look into exonuclease. सर चलो डन. हाँ, यस सेजल बोल. दोनों को मॉलिक्यूलर सीजर बोलेंगे या सिर्फ एंडोन्यूक्लियस नहीं, दोनों को बोल सकते हैं, दोनों को डेफिनेटली दोनों को बोलेंगे, बट हमको फिलहाल एंडोन्यूक्लियस का काम है, सो मैं खाली उसको डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, चलो डन. इतना तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इनका एक खासियत जान लेते हैं. हाँ, यस. This endo means something inside and exo is something outside. That is perfect. Exo means outside, so you come from the outer side. Endo means towards inner side, so it is non-terminal. Ends पे नहीं, अंदर कहीं पे भी कट करेंगे. Not necessarily in the center, but essentially not at the terminals. Clear? understood. Okay. Yes, sir. There is one more thing which I would like to know about Sir? endonuclease students. Yes. Why it is called as restriction enzyme? Restriction, because it is restricting the cut, it is restricting the size. उतने ही साइज को कट करके बाहर लाके पेस्ट कर देगा अपने वेक्टर में. Now I would like to know one more thing about restriction endonuclease or endonuclease enzyme. वो कौन सी बात है? बहुत खास बात है students. Very important point. Very important point. And what is this important point? ये है, important point ये है कि आपने पैलिंड्रोम सुना है, ये वर्ड पैलिंड्रोम? किसी ने सुना है ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस? अच्छा, कभी नहीं सुना. ठीक है. अच्छा, ये आपने सुना है. अच्छा, गिव मी एनी नेम जो आगे से या पीछे से पढ़े तो स्पेलिंग सेम ही होगा, मतलब सॉरी, स्पेलिंग को कहीं से भी रीड करे. मलयालम. नमन. ओके. Reskar. नमन. वेरी गुड. Noon. Madam. क्या अदनान क्या बोला? Madam. MADAM. अच्छा, मैडम. ओके, मलयालम भी है. लेवल, क्या बात है, लेवल सीरीज. Even noon. इवन Noon. NOON.
NOON, ओके ओके ओके, नून, ठीक है। व्हाट एल्स? नयन से याद आया, नयन रेस कार, क्या बोला? रेस कार, रेस कार, रेस कार, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। रेफर, वेरी गुड। सो दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्टूडेंट्स, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मतलब इनको आगे से पीछे से कहीं से भी पढ़ो सेम आवाज निकल रही है ना। सो एंडोन्यूक्लियसेस विल सर्च फॉर दीज सीक्वेंसेस, वो हमेशा सर्च करेंगे ऐसे सीक्वेंसेस के लिए, एंड हर किसी का सीक्वेंस फिक्स्ड है। जैसे कि अगर सपोज अवनीश एक एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, तो अवनीश ने हमको बोल दिया है कि देख भाई मैं एंडोन्यूक्लियस हूं, और मैं अगर डीएनए में गया, अगर मैं डीएनए में अंदर जाता हूं तो मैं बोलूं कहाँ कट करूंगा, उसने बोला कि मैं ऐसे जगह कट करूंगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ चेक करो, एक सेकंड, रुको रुको रुको, आई विल अपलोड द इमेज एंड वहीं पे बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये चले जाते हैं स्क्रीनशॉट, एंड ये वाला चेक करो स्टूडेंट्स, ये वाला इमेज चेक करो, ये चेक करो, लुक एट दिस सीक्वेंस। नाउ इन्होंने एक डीएनए आपको दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज वन डीएनए, एंड ये थोड़ा जूम करके उन्होंने खाली सीक्वेंस बाहर लिख के दिए हैं आपको जानबूझ के, उन्होंने सीक्वेंस आपको जानबूझ के बाहर लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग, आपको क्या समझ में आना चाहिए कि दीज आर दी सीक्वेंसेस विच शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर, अंदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है ना, बट आपको समझ में आए, रीडिंग कर पाओ, इसलिए उन्होंने बाहर लिख दिया सेम थिंग। ओके, सो अवनीश अगर एंडोन्यूक्लियस है तो अवनीश क्या बोलेगा, मैं उसी सीक्वेंस को कट करूंगा जहां पे स्पेसिफिकली दीज नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट। अभी इसको चेक करो स्टूडेंट्स, एक बार चेक करो, इज इट पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम होना कंपलसरी Yes. है। हाँ Yes, देखो sir. यहाँ से जाओ Yes, sir. एंड यहाँ से उल्टा रीड करते हुए जाओ, सेम आ रहा है, Yes, sir. GAATTC, सेम है ना, करेक्ट। सो दिस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में भी अगर अवनीश इज वन एंजाइम, इफ ही हैज सिलेक्टेड दिस सीक्वेंस, और कोई ये सीक्वेंस सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। अब GAATTC ये सीक्वेंस अवनीश का ही हो गया। सो एवरी एंजाइम इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। Are you getting this? This is why I said कि a specific enzyme will cut both your target DNA also and your plasmid also, so that same sequence निकल के बाहर आ जाए। So बायोटेक्नोलॉजी वाले को पता है कि कौन सा एंजाइम यूज करना है, हम ऐसे रैंडमली पढ़ रहे हैं, चल ये यूज कर ले, कट कर ले, बट उनको पता है कौन सा एंजाइम कहाँ यूज करना है। ये बात क्लियर है? कोई भी कहीं भी नहीं यूज करेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। एंड हमारे डेटा में हमको ये पढ़ाई नहीं करनी है कौन सा कहाँ यूज करना है। आपको एक एग्जांपल दिया है, ई कोर आई 1 का एग्जांपल दिया है, सो ई कोर 1 का एग्जांपल अपन पढ़ेंगे, ई कोर 1 का एग्जांपल हम पढ़ेंगे, हमको खाली यही एक एग्जांपल दिया, दिस इज वेयर वी हैव टू गो अहेड विद। बाकी एग्जांपल्स अपने को नहीं देते, हमको वो एग्जांपल्स नहीं पढ़ने, बोर्ड से टेक्स्ट बुक्स में दे हैव गिवन सम मोर एग्जांपल्स, so you can learn those examples also, and surely if they have given you examples, there is very high chance they might ask you as MCQs or match the column, etc etc etc. I'll come to those examples also, ठीक है, for both students separately. चलो ये क्लियर हो गया बात, ये बात क्लियर हो गया? Okay. No. Now, Yes, sir. हाँ, मैं ये एक और है, एकोराई के बारे में रुक जा सेजल, अभी मैंने उसके बारे में डिटेल नहीं दी है। और किसी को डाउट है? सर वो डाउट कुछ? स्पेसिफिक आपने बोला एंजाइम है, तो वो पूरे बॉडी में एक ही जगह होगा कि मतलब वो डीएनए में एक ही जगह? Okay, okay, okay. Now these enzymes are obtained from bacteria. हमारे बॉडी में नहीं होगा, बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है पहली बार। सो हम वहां से इसको स्टडी करके we have started to make it synthetically maybe, or we derive it from bacteria. That is my answer. So the plasmids used are from bacteria. The enzymes also used are from bacteria only. Correct, correct. Okay. And sir, so till all the words they were saying, level and everything, till that I got. Uske baad I did not get it. It's a little confusing. No problem, ठीक है. So did you understand कि this is palindromic sequence? महक, ये palindromic sequence? Yes, yes. हाँ, very good. So whenever you have to understand कि ये जो molecular scissors हैं, they always search for a palindromic sequence. ये तो बात कंफर्म है। इन्हीं को हम बोलते हैं recognition site, recognition sequence.
recognition sequence where they will recognize, अरे वाह ये palindrome है, wait let me see, is it my palindrome. अगर E-core आ गया, E-core ये जो एंजाइम का एक नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक नाम मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे नाम दिया है इसका, ये देखो E-core. So E-core 1, it is E-core 1. E for Escherichia, CO is for coli. आपको समझ में आता होगा ये E. coli अपन बोलते हैं ना, वो बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे यूज किया है. R is the strain and then 1 is the number given to the enzyme which is discovered in which order. जो भी ऑर्डर में डिस्कवर किया जाएगा उसको नंबर देते जाते हैं ये लोग, ठीक है. ये देख ये नेमिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, पता है ये नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं. ये पार्ट कहाँ से आया, E. coli से आ गया ये पार्ट, E. coli, which is okay. E. coli is bacteria ना, E. coli is the name of bacteria, okay. R is the strain, जो भी वो लोग strain decide करते हो कि कौन सा strain है, R S S, okay. And I, this is not I, this is 1. So yeah, Roman number. एंजाइम नंबर, हाँ एंजाइम नंबर क्या है. अगर उनको सपोज इसी सीरीज में उनको 3-4 एंजाइम मिल गए, सो एक का नाम होगा 1, एक का 2, एक का 3, एक का 4, इस हिसाब से दे गिव नंबरिंग. क्लियर. अभी देख, हाँ एक रुक जा. अभी सपोज E-core 1 तूने अप्लाई किया, ठीक है. E-core 1 ने क्या बोला महक को कि आई एम गोइंग टू सर्च फॉर माय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन योर डीएनए. अगर महक के डीएनए में मेरा पैलिंड्रोम सीक्वेंस रहा तो आई विल कट इट इमीडिएटली, मैं कट कर दूंगा उसी पॉइंट पे. अगर नहीं मिला सो आई एम नॉट गोइंग टू कट इट एंड आई विल कम आउट. कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाऊंगा. समझ में आया? या ओके. तो अगर उसने देखा GAATC, वाओ दिस इज माय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, चेक करो, है ना. E-core 1 ने आइडेंटिफाई कर दिया, दिस इज माय रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वाओ आई हैव रिकॉग्नाइज्ड माय पैलिंड्रोम, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड माय पैलिंड्रोम, नाउ आई एम गोइंग टू शो एक्टिविटी. सो वो क्या करेगा, वो कट करना शुरू करेगा. इट विल ऑलवेज कट. दिस इज नोन टू अस. बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ये एक एग्जांपल के बारे में सब कुछ बताया गया. उन्होंने बोला कि E-core 1 विल ऑलवेज कट बिटवीन G and A. सो ये रहा G and A, यहाँ पे पहला कट आ जाएगा, ये देख महक ऐसे यहाँ पे कट कर देगा और यहाँ पे कट कर देगा. सो व्हाइल इट इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये वाला पार्ट कट करेगा, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये वाला पार्ट अपन कट कर देंगे. क्लियर. तो जैसे ये पार्ट कट होगा, सो नाउ लुक एट द इमेज नाउ. अब कैसा कुछ दिखाई देगा, ये देख, ये अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज आवर एंजाइम, ठीक है. नाउ इट इज right now it is acting on DNA. Check कर, it is acting on DNA. It has identified the recognition sequence that is going to cut. So अब check कर कैसे कट किया, ये देख. Okay, got it. समझ में आया? Yeah, sir. Also, एक मिनट, अभी जो वृष्टि वर्ड यूज करी थी उस वर्ड पे भी मैं अभी यहीं पे आ जाता हूँ, ठीक है. She used a word which was sticky ends. Sticky ends. I will say sticky ends are those ends or those segments of DNA जो कट करने के बाद बनते हैं. कट हो गया, डीएनए का स्ट्रैंड कट हो गया, अपने सीजर ने काम कर दिया. सीजर ने ऐसा कुछ कट किया कि आई हैव बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस which are now ready to bind. ये देखो इनका पेयरिंग हो रहा है क्या यहाँ पे, या दे आर लाइंग अलोन, अकेले बेचारे खड़े हैं, ये लोग भी अकेले खड़े हैं. शाबाश. So if we provide complementary bases, don't you think वो bind हो जाएंगे? इतना बात समझ में आया? So they are therefore sticky and they are ready to bind. नहीं समझा, वापस बोलो ना. Okay, wait. ये सेशन एंड हो रहा है. ये सेशन एंड हो रहा है तो वापस से ज्वाइन करो, फिर से इसको डिस्कस करते हैं. पहले महक का डाउट ले लेंगे फिर डिस्कस करें. ठीक है, ज्वाइन मी अगेन स्टूडेंट्स.